جانتا ہوں کہ ظلم ہے میر گل خان نصیر، جانتا ہوں کہ ظلم ہے، بیڑیاں پاؤں میں ہیں ہاتھوں میں زنجیریں، بیڑیاں پاؤں میں ہیں ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، اونچے سردار ہیں زردار ستم ڈھانے کو، اونچے سردار ہیں زردار ستم ڈھانے کو، یہ بیچارے کماکاروں پہ شمشیریں ہیں، اور بیچارے کماکاروں پہ شمشیریں ہیں، جانتا ہوں کہ یہاں راج ہے زرداروں کا، جانتا ہوں کہ یہاں راج ہے زرداروں کا، حکم ہے، حکم ہے، حاکم ہے، ظلم ہے، قہر ہے سرداروں کا، میں نہ چھوڑوں گا تجھے ظلم و ستم سے ڈر کر، میں نہ چھوڑوں گا تمہیں ظلم و ستم سے ڈر کر، میں نہ چھوڑوں گا تجھے رنج و الم سے ڈر کر، میں نہ چھوڑوں گا تجھے ہاتھوں میں سرداروں کے، میں نہ چھوڑوں گا تجھے ہاتھوں میں سرداروں کے، میں نہ بھاگوں گا کہیں جاؤ حشم سے ڈر کر، تیری آغوش میں ہی مجھ کو فنا ہونا ہے، تیری آغوش میں ہی مجھ کو فنا ہونا ہے، تیرے ماتھے سے مجھے داغ سیاہ دھونا ہے۔ میں اب ایک ذکر کرتا چلوں، کیونکہ اب جو مصری خان کھیتران کی باکو میں کانفرنس میں شرکت کے حوالے سے جو مقالہ ہے وہ ہمارے ہر دل عزیز دوست جمیل بزدار صاحب کو پڑھنا تھا، چونکہ رات ٹولائی سے آتے ہوئے اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ہاتھ پہ فریکچر آیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ روح بصحت ہیں، تو ان کی جگہ جمیل کا جو یہ مقالہ پڑھنے کے لیے میں محترم عبدالواحد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آ کے یہ مقالہ پیش کریں۔ مصری خان کھیتران باکو کانفرنس میں شرکت، از قلم جمیل بزدار۔ بلوچ نے سامراج کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا، مجھ سے پہلے مقالہ نگاروں نے جنگ گنبد اور ہڑپ کے حوالے سے بلوچ مزاحمت کاروں کے کارنامے بیان کیے۔ مصری خان کھیتران نے سامراج کے خلاف مزاحمت کے لیے 27 فروری 1918 کو دیوی جماعت کا عہدہ چھوڑ کر اور 1 مارچ کو مری قبائل کے ساتھ جا ملا اور انگریز کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کی۔ چونکہ ان جنگ میں بلوچ کو شکست ہوئی، اس لیے انگریز کے جنرل ہارڈنگ نے 7 مئی 1918 کو شکست خوردہ کھیتران قبائل کے ساتھ مفاہمت کے لیے شرائط کا اعلان کیا، تاکہ ہم مصری خان وہ واحد شخص تھا جس نے انگریز کی اطاعت کرنے سے انکار کیا۔ وہ 20 جون 1918 کو قندھار فرار ہوا اور پھر وہاں سے کابل چلا گیا۔ یہاں بلوچستان میں ارنائی کے مقام پہ جون 1918 میں ایک جرگہ منعقد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں سرداروں نے شرکت کی، جس میں مصری خان کو منقطع طور پر باغی قرار دیا گیا۔ یوں مصری خان کے لیے بلوچستان واپس آنے کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ ادھر سوویت انقلاب نے بھی ان کو اپنی طرف کھینچا۔ مصری خان اپنے وطن کو انگریز کے قبضے سے چھڑانے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، وہی سوویت یونین محکوم قوموں کے لیے ایک روشنی کا منبع تھا۔ چنانچہ مصری خان اور ان کے بھائی صوبیدار خان افغانستان سے سوویت یونین چلے گئے۔ سوویت یونین میں ہندوستان سمیت دنیا بھر سے مختلف محکوم قوموں کے وفود جاتے تھے، جن کے بارے میں لینن نے کہا تھا کہ محکوم ہندوستان کے لوگ سوویت ریپبلک کے ستارے کی جانب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ محکوم اقوام جانتی ہے کہ سوویت ریپبلک نے سامراج کے خلاف بہت قربانیاں دی اور ثابت قدمی دکھائی۔ سوویت میں ان کو انقلابی لٹریچر پڑھایا جاتا تھا اور ان کو جنگی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ انقلاب لٹریچر میں مختلف شارٹ کورسز کروائے جاتے تھے اور مختلف موضوعات پر لیکچر دیے جاتے تھے، جیسا کہ انسان کی ابتدا، کلاس اسٹرگل کا جوہر اور جغرافیائی اطلاعات وغیرہ۔ کچھ عرصہ ٹریننگ لینے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان لوگوں کو واپس اپنے وطن روانہ کیا جاتا۔ مصری خان نے 1920 میں باکو کانفرنس میں بلوچستان کے وفد سے شرکت کی۔ ایک روایت کے مطابق 5 رکنی وفد قیادت ڈاکٹر تارا چند بلوچ نے کی۔ 1920 میں روس کی انقلابی حکومت نے لینن کی سربراہی میں آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں ایک بین الاقوامی کانفرنس طلب کی، جس میں دنیا بھر سے محکوم قوموں اور پارٹیوں کے 1891
नुमाइंदों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में ये फैसला हुआ कि इनकलाबी लिटरेचर को मकामी जुबानों में तर्जुमा करके बलूचिस्तान पहुंचाया जाएगा। इस मकसद के लिए मिस्री खान और इसके साथी काफी अरसे तक काबुल में रहे। लेनिन के थीसिस के मुताबिक सोवियत यूनियन मशरकी मुल्कों में बुर्जुआ डेमोक्रेटिक लिबरेशन मूवमेंट की हिमायत करेगा। इसका ख्याल था कि एशिया की कॉलोनियों और मुनहसर ममालिकों में फ्यूडल या बेदरसरी वाले रिश्ते हावी हैं। कांग्रेस ने दीगर मशरकी जुबानों के अलावा बलूची जबान में भी कम्युनिस्ट लिटरेचर के तर्जुमे और इशात की इजाजत दी। बाकू कॉन्फ्रेंस में यह ऐद किया गया कि इनकलाबी नेशनलिस्ट तहरीकों की मदद की जाएगी, जिसके लिए अक़वाम मशरिक का एक मैनिफेस्टो मंजूर किया गया। कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल तराने से 1 सितंबर 1920 में शुरू हुई और 7 सितंबर तक चली। इसमें कुल 7 सेशन हुए। बाकू में होने वाले इस कॉन्फ्रेंस के इंतजाम इस शहर की एक छोटी कमेटी ने किए, जिसमें अज़रबैजानी कम्युनिस्ट नरीमानों और हुसैनों और जबकि दागिस्तान से सैयदगाह तुर्की से मुस्तफ़ा सूफी, नीज जारजियाई और रूसी एलेंटीना शामिल थे। ये बात नोट करने की है कि बाकू में होने वाली कॉन्फ्रेंस में डेलीगेट्स की शिरकत हरगिज़ आसान न थी। जैसा कि मॉस्को से बहुत से डेलीगेट खुसूसी ट्रेन में सफर कर रहे थे। ये सफर आसान इसलिए न था कि ट्रेन में इस रास्ते से गुजरना था जिसमें से अक्सर रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ियां रूस की जारी खाना जंगी में तबाह हो चुकी थी। चुनांचा इस पुरखतर रास्ते पे सफर करना एक बड़ा चैलेंज था। इसके अलावा सोवियत रूस की फौजी नाकाबंदी की बुरी तरह निशाना बना था। बरतानिया ने बाकू के सफर में रुकावट डालने की पूरी कोशिश की। जैसे ईरान से बाकू जाने वाले जहाज पर बरतानवी जंगी तैयारों से हमला किया गया, जिसमें कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आने वाले डेलीगेट्स के 2 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। इसी तरह बहरिया अस्वद में बरतानवी बहरी जहाज गश्त कर रहे थे, जिसकी वजह से तुर्की से सफर एक पुरखतर मामला था। आर्मेनिया और जॉर्जिया की हुकूमत ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर पाबंदी आयद की। चुनांचा इन ममालिक के डेलीगेट्स इन ममालिक से सरहदों के चुपके से गुजरने पर मजबूर हुए। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद तकरीबन 1900 डेलीगेट्स 1 सितंबर 1920 को बाकू कॉन्फ्रेंस में जमा हुए। बाकू कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाली डेलीगेट्स के लिए ईस्टर्न ऑर्केस्ट्रा बजाया गया, जिसका दौरानिया 48 सेकंड था। ये याद रखने की बात है कि 1891 डेलीगेट्स में 1300 रजिस्टर्ड कम्युनिस्ट थे, जंगजू और इनके हमदर्द थे, जिसमें अजरबैजान, आर्मेनिया, काजाकिस्तान और सोवियत रूस की पार्श्विक तंजीमें और इनके पेशेवर इनकलाबी अफराद शामिल थे। ये इनके हमदर्द थे, जिनमें अजरबैजान, आर्मेनिया, काजाकिस्तान और सोवियत यूनियन की पार्श्विक तंजीमें और इनके पेशेवर इनकलाबी अफराद शामिल थे। ये इस बात की अक्कासी करता है कि 1920 तक एशिया बहुत कम नौआबादियाती ममालिक में कम्युनिस्ट पार्टियां कायम थी। कॉन्फ्रेंस के मुंतजिमीन के लिए एक और बड़ा चैलेंज ये भी था कि शुरका की ज़ुबानें मुख्तलिफ थी, इसलिए इन्हें मकामी ज़ुबानों में तर्जुमा करना मुतरजमीन के लिए काफ़ी मुश्किल था। चूँकि हाल कचाकच भरा हुआ था और शोर ज़्यादा होने की वजह से अल्फाज समझने और तर्जुमा करने में मुतरजमीन को काफ़ी दुश्वारी हुई। दूसरी तरफ मुख्तलिफ मज़ाहिब और अक़वाम के लोग जैसे मुस्लिम और गैर मुस्लिम, आर्मानियाओं और तुर्कों और दूसरी अक़वाम का एक साथ होना भी एक चैलेंज था। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह 1 सितंबर को बाकू सोवियत और अज़रबैजान की ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम इफ्तिताई रैली से हुआ। दिन के तकरीबन 1:30 पर आगाज हुआ। इज्तिमा ने यूरोप और अमेरिका से आए हुए नुमाइंदों का पुरजोश इस्तकबाल किया। ऑर्केस्ट्रा पर मौजूद एक नौजवान ने तराना इंटरनेशनल को बार बार बजाया। इसके बाद अज़रबैजान की कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से नरीमान ने तारुफी इनकलाबी कलमात पेश किए। बरतानिया के टॉम क्विल्ट, फ्रांस के एल्फ्रेड रूल्स, अमेरिका के मशहूर मुसन्निफ जॉन रीड और ऑस्ट्रिया की स्टेनहार्ट ने मुख्तसर तकारीर की। पहला सेशन मुकम्मल तौर पर ज़िनोविव के एक तवील कुरैती तकरीर के लिए वक्त था, जिसने बाकू कॉन्फ्रेंस को सेकंड वर्ल्ड कांग्रेस का दूसरा निस्फ हिस्सा करार दिया। सेकंड वर्ल्ड कांग्रेस बाकू कॉन्फ्रेंस से पहले मॉस्को में हुई। नई कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को सेकंड वर्ल्ड कांग्रेस के बरअक्स
जिनोवेव ने पेश किया, जिसमें कहा गया पूरे मशरक के किसान मगरब के मुनज़्ज़म मेहनत कशों की दानिशमंदाना क़यादत में अब एक हकीकी मुकम्मल ज़र्री इंक़िलाब पर बर्पा करने के लिए लोग करोड़ों की तादाद में उठ सकेंगे, ताकि मट्टी को साफ करने के काबिल हो जाए, ताकि कोई बड़ा ज़मींदार बाकी ना रहे, कोई कर्ज की गुलामी ना रहे, कोई टैक्स वाजिबात या अमीरों के ज़ेर इस्तेमाल मराहत बाकी ना रहे और ज़मीन मेहनतकश अवाम के हाथों में चली जाए। ये भी कहा गया कि सेकेंड वर्ल्ड कांग्रेस ने यह तय किया है कि मशरिक अक़वाम के लिए सोशलिस्ट इंक़िलाब शुरू करने से पहले सरमायादारी से गुजरना अब ज़रूरी नहीं होगा। चुनांचे चीन, हिंदुस्तान, ईरान, तुर्की और आर्मेनिया की कौमों पर प्रोलेटारिया इंक़िलाब के लिए मौजू करार दिया गया। दूसरे सेशन में कार्ल रेडिक ने एक तवील तकरीर की। उन्होंने कहा कि मशरिक के लोगों को बरतानवी और रूसी सल्तनतों ने तवील साम्राज्य मुखालिफ जद्दोजहद की वजह से निशाना बनाया। रेडिक के मुताबिक मिडल ईस्ट और फार ईस्ट को मंडियों तक रसाई के लिए आलमी जंग में झोंक दिया गया। ताहम इसकी वजह से साम्राज्यिक कुव्वतों को जो जीते या हारे को काफी हद तक कमजोर कर दिया गया, जिसकी वजह से नौ आबादियाती इस्तेहसाल में इजाफा हुआ है। ताहम इस खतरे को सिर्फ इस सूरत में खत्म या कम किया जा सकता है कि मशरिक के मेहनतकश अवाम यूरोप के मेहनतकशों के साथ खड़े हो। एक सेशन में नेशनलिज्म और नौआबादियात के सवालात पर बहस की गई। ये बहस बावजूद की एक तवील तकरीर पर थी, जिसने